Hello and welcome. I'm Vishwajit Singh Gautam and you are seeing CBSE and CISE class videos 360 channel. This is the intro video of polynomials chapter of class 9th. If you like the video, so please like and subscribe the channel and press bell icon button for more updates and share with your friends. Let's begin. Constants are symbol having a fixed numerical value called a constant. एक ऐसा सिंबल जो अपने फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू रखता है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं. सो कांस्टेंट्स में जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं वही सारे आ जाते हैं, जैसे 7, 5/2 एंड √3 and -18. These are all constants. ये सभी constants हैं. Any number constant होगा. Now we know what are variables. A symbol which may be assigned different numerical values. एक ऐसा सिंबल जिसकी को हम डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं इज नॉन एज अ वेरिएबल. उसको हम वेरिएबल बोलते हैं. इस वेरिएबल्स में एनी अल्फ़ाबेट आ जाता है, A, B, C and X, Y, Z. These are all variables. And if we talk about the circumference of circle, so C is equal to 2 pi r. C equal to 2 pi r, where r is the radius and c is the circumference of circle, where 2 and pi are constants and c and r variables. हैंगे. Now we know algebraic expressions. Algebraic expressions क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का. कांस्टेंट्स नंबर एंड वेरिएबल्स अल्फाबेट्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस प्लस नेगेटिव क्रॉस एंड डिवीजन साइन. इन सबसे वो क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. चाहे कुछ यूज हो, प्लस और नेगेटिव का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है या नेगेटिव एंड डिवीजन का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इज नॉन एज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. उसको हम एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल 5x² -9x + 4 is an algebraic expression. Here plus and negative signs are used and 5x². then यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है जो हम मेंशन नहीं करते. So this is an algebraic expression. Now we know terms of an algebraic expression. एक algebraic expressions के terms क्या होते हैं? The several parts of an algebraic expression separated by plus or negative operations. एक algebraic expression के several part होते हैं जो separated होते हैं प्लस या नेगेटिव साइन से, are called the terms of the expression. उन्हें हम terms of the expression बोलते हैं. जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में दिस इज एन algebraic expression. If we talk about the terms in this algebraic operation, so
नेगेटिव एंड प्लस जहां पे आते हैं वहां से टर्म्स डिसाइड होते हैं। सो वन टर्म इज 5x² and other term is plus 9x and third term is 4। so इसमें 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। and other example is 4x cube plus √3x square minus 7/8x minus 9। So this is an algebraic expression, and if we talk about the number of terms, there are 4 terms, 1 2 3 and 4। प्लस एंड नेगेटिव साइन से टर्म्स डिसाइड होते हैं। सो 4x³ and √3x² minus 7/8x and minus 9। नेगेटिव साइन को हम टर्म के साथ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज z raised to the power 4 minus 27। so this example there are 2 terms 1 and 2, and one term is z raised to the power 4 and other term is minus 27। now we know polynomials in one variable। so ये क्या होता है, an expression of the form a0 plus a1x plus a2x² plus z plus an minus 1 x raised to the power n minus 1 plus an x raised to the power n, where इसको हम एक पॉलिनोमियल बोलेंगे where a0 a1 a2 z an minus 1 an are रियल नंबर्स होते हैं एंड an नॉट इक्वल टू 0, an 0 नहीं होगा। n is a नॉन नेगेटिव इंटीजर और n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आती है। पॉजिटिव इंटीजर्स की जो वैल्यूज हैं वो होनी चाहिए, n की वैल्यू इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल्स इन x ऑफ डिग्री n। उसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं जिसकी डिग्री क्या होगी, n होती है। सो हियर a0 इज दी कॉल्ड दी कांस्टेंट टर्म। a0 को हम कांस्टेंट टर्म्स बोलते हैं बिकॉज इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स एंड a1 a2 a3 z n minus 1 an are called the coefficient of x। a1 x का कोफिशिएंट है, a2 x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, a3 x क्यूब का कोफिशिएंट है एंड an minus 1 x रेज़ टू द पावर n minus 1 का कोफिशिएंट है, an x रेज़ टू द पावर n का कोफिशिएंट है। सो इस तरीके की जो एक्सप्रेशन है उनको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। सो नाउ आई टेल यू इन शॉर्ट व्हाट इज पॉलिनोमियल। जो भी वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव में नहीं होने चाहिए। यहाँ पे हम जानेंगे कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होते। यदि वेरिएबल की पावर नेगेटिव में है देन इस तरीके के जो भी एक्सप्रेशन है
वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और वेरिएबल पावर यदि अपॉन में है देन वो भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। और यदि वेरिएबल की पावर डेसिमल में है 0.7 सो दिस एक्सप्रेशन भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। और यहाँ पे हम डिग्रीज की बात करें कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल होता है। जो भी मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की उसी को हम डिग्री बोलते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे x रेज़ टू पावर n और यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होती जा रही, जिस पे कुछ नहीं है उस पे 1 2 3 देन 4 5 एंड डैश n। सो n इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर n है। सो लेट्स अंडरस्टैंड with an example. Suppose a polynomial fx is a polynomial fx equal to 7x square 4x plus 3। सो जो भी वेरिएबल्स हैं हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो x की पावर है, जो वेरिएबल की पावर है वो इस फॉर्म में तो नहीं है यहाँ पे 2, यहाँ पर 1 जो क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर है। सो this is a polynomial and now we find what is the degree। so maximum power of variable यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, 2 is greater than 1। so degree of this polynomial is 2। degree of polynomial is 2। and now second example is g(x) equal to 103x cube plus 5x square minus 3/4x minus 9। सो जो भी वेरिएबल है x उसकी जो पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, कोई भी इस फॉर्म में नहीं है। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल हैगा। एंड अब इसमें डिग्री की बात करेंगे पॉलिनोमियल की, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम पावर x की 3। so now degree of the polynomial is 3। and third example is hx equal to x raised to the power 9 minus 2x cube plus 4। here x की पावर इसमें से कुछ भी नहीं है, सो इस फॉर्म में नहीं। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल विच इज 9। सो 9 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ वी नो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। A polynomial in x expressed either in ascending powers of x or in descending power of x is said to be in standard form। एक पॉलिनोमियल जो x के x वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड ईदर इन असेंडिंग, या तो उसको बढ़ती हुई क्रम में अरेंज करेंगे वेरिएबल की पावर्स में, एंड इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x, या तो फिर उसे जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी डिसेंडिंग पावर्स के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। इस तरीके से जो भी एक्सप्रेशन फॉर्म होता है आफ्टर दिस रीअरेंजमेंट, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल होता है। लेट्स अंडरस्टैंड विथ एन एग्जांपल। 6x square plus 9x raised to the power 4 minus 7x cube plus 5 plus x raised to the power 8। दिस इज अ पॉलिनोमियल, जो भी x की पावर है क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, एंड जो इसकी जो नॉन नेगेटिव इंटीजर है दिस इज अ पॉलिनोमियल, बट दिस इज नॉट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म क्योंकि जो
x की पावर्स हैं, ना तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है ना ही वो डिक्रीजिंग। 2 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 8, मीन विदाउट ऑर्डर ये चल रहा है। सो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो यदि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, मीन मैक्सिमम पावर्स को पहले, जो भी मैक्सिमम पावर होगी x की उसको हम पहले लिखेंगे, x raised to the power 8 plus 9x raised to the power 4 minus 7x cube plus 6x square plus 5. So now we seen 8, then 4, then 3, then 2. Now the powers are descending orders of variable के फॉर्म में. So this is a standard form. में हैगा। एंड यदि हम इसको क्या है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, सो लाइक दिस 5 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब एंड 9x रेज़ टू पावर 4 प्लस x रेज़ टू पावर 8. दिस इज आल्सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, बट हम जो न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं वो डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करेंगे। कोई सा भी न्यूमेरिकल हो हम डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करके ही सॉल्व करते हैं। आई होप दिस इज वेरी इजी, इट्स you understand this. Stay tuned and best of luck.